Good morning, student. Myself Adit Solanki. I am your social science teacher, and this is your second video of this chapter, chapter 2, Interior of the Earth. In previous video, we discussed on inner layer of the Earth, the layers of the Earth crust, mantle, core, and material of the Earth crust. इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी लेयर कौन कौन सी हैं। अर्थ की 3 लेयर होती हैं। पहली है क्रस्ट जो सबसे ऊपर होती है, मेंटल बीच में है और कोर सबसे इनर लेयर होती है। और मटेरियल के बारे में पढ़ा था कि अर्थ क्रस्ट किस किस चीज़ों से मिलकर बनी होती है। और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि रॉक्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है इग्नियस, देन सेडिमेंट्री, देन मेटामॉर्फिक्स। अब हम लोग टाइप ऑफ रॉक्स को पढ़ेंगे। टाइप ऑफ रॉक्स में सबसे पहली हेडिंग है आपकी igneous rocks. These rocks are formed by the cooling of the hot molten magma, which is abundantly found in the Earth's interior. Igneous means fiery, so these rocks which have been found by the internal heat of the Earth are called igneous rocks. Sometimes the molten matter cools down slowly under the crust. Such rocks are called plutonic rocks, such as granite, which is used as the building stone. Sometimes the lava comes out through a hole or a vent and cool down on the earth's surface. Such a rock is called the volcanic rocks, such as basalt. It is found in abundance in the Deccan Plateau. It is used in building roads. The igneous rocks are found in masses, not in layers. Igneous rocks are also called primary and basic rocks because all the other rocks are directly and indirectly formed from them. They make up a large percentage of the earth crust. इग्नियस रॉक के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो सबसे बेसिक रॉक होता है, यानी कि जिससे सारे रॉक्स बनते हैं, वो इग्नियस रॉक होते हैं। अब इग्नियस रॉक्स किससे बनते हैं? जब मोल्टेन मैग्मा यानी कि जो लावा होता है वो अर्थ सरफेस से बाहर आता है। लावा दो तरीके से ठंडा होता है, एक अर्थ सरफेस के अंदर रह के ही ठंडा होना, जिससे वो बहुत धीमे धीमे ठंडा होता है, और तब जो रॉक्स बनते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं? प्लूटोनिक रॉक्स। बट अगर लावा किसी होल या वेंट से तेजी से बाहर निकलता है तब वो बहुत ही जल्दी सूखता है या बहुत ही जल्दी ठंडा होता है। तब जो रॉक्स बनते हैं उनको क्या कहते हैं? वॉल्केनिक रॉक्स। अब हम लोग बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स, the earth's surface is constantly being eroded, which means the rocks break up into smaller pieces due to the action of weathering agents such as wind, water, and ice. These small pieces of rocks turn into pebbles, gravel, and clay. They often roll down the river and stream and get deposited at their end. As they roll, a bits and pieces of rocks are broken from sediments layer. After layer of sediments are pressed and cemented together, resulting in the formation of sedimentary rocks. Sedimentary rocks are often rich in fossil. Fossil are the remains of dead plants and animals trapped in the layer of rock. Generally, sedimentary rocks are soft and easily breakable. These rocks are widely found in about cover about 75% of the total land area of the earth. Some examples of sedimentary rocks are sandstone, limestone, conglomerate, and shale. जो अर्थ की सरफेस होती है वो कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार इरोड की जाती है, यानी कि ऊपर से हटा करती है, which means the rocks break into smaller pieces due to action of weathering agents such as wind, water, ice. इसका यह मतलब है जो रॉक की लेयर होती है वो लगातार छोटे छोटे पीसेस में
टूटती रहती है वेदरिंग के प्रोसेस के एक्शन से, चाहे वो विंड हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो आइस हो। दिस स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स टर्न इनटू पेबल्स, ग्रेवल्स एंड क्ले। जो ये स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक्स के, वो पेबल्स, ग्रेवल और क्ले में चेंज होते हैं। दे often roll down the river and stream and get deposited at their end। और वो रोल डाउन होके रिवर के एंड में या कहीं पे भी ऐसी जगह डिपॉजिट हो जाते हैं। एज दे रोल, bits and pieces of the rocks are broken and form sediments। और जब वो रोल डाउन होते रहते हैं वेदरिंग के प्रोसेस के दौरान, तो वो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में, पीसेस में टूटते रहते हैं। नेक्स्ट पेज। लेयर आफ्टर layer, sediments are pressed and cemented together, resulting in the formation of sedimentary rocks। और इस प्रोसेस में कई 100 साल लगते हैं एक सेडिमेंट लेयर बनने में, फॉर्म होने में। सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑफन रिच इन फॉसिल, और ये काफी रिच होते हैं फॉसिल में। फॉसिल मोस्टली इन्हीं रॉक्स में पाया जाता है। फॉसिल आर द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ द रॉक्स। फॉसिल उन मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स के अवशेष होते हैं, रिमेन्स होते हैं, जो कि रॉक्स में ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। जनरली सेडिमेंट्री रॉक्स आर सॉफ्ट एंड इजिली ब्रेकेबल। ज़्यादातर जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। दीज रॉक्स आर वाइडली फाउंड एंड कवर अबाउट 75% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। और ये काफ़ी भारी मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि अर्थ के 75% एरिया यही कवर करते हैं। सब एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर, और इनके कोई एग्जांपल हैं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। देन हम लोग बात करते हैं मेटामॉर्फिक के बारे में। अब मेटामॉर्फिक क्या है? Igneous and sedimentary rocks change into appearance and mineral composition due to extreme heat and pressure under the surface of the earth. A change in the structure of constitution of the rocks due to natural agencies such as heat and pressure is called metamorphism। The rocks formed by the process of change due to heat and pressure are called metamorphic rocks। इग्नियस और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो अत्यधिक हीट यानी कि गर्मी और प्रेशर के दौरान अपने केमिकल कंपोजिशन को चेंज करते हैं। यानी कि जब कोई भी इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक्स काफ़ी नीचे दबा रहता है, काफ़ी हीट में रहता है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, फिजिकली भी एंड केमिकली भी। अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ constitution of a rock due to natural agencies such as heat and pressure is called metamorphism। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। The rocks formed by the process of change due to heat and pressure are called metamorphic rocks। और जो रॉक्स इन प्रोसेस के दौरान बनते हैं, यानी कि मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के दौरान बनते हैं अत्यधिक हीट और प्रेशर में, उनको हम लोग क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो सबसे पहले आपने पढ़ा इग्नियस रॉक्स जो कि लावा से बनते हैं। जब इग्नियस रॉक्स छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे पीसेस में टूटते हैं और डिपॉजिट होते हैं, तब वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। और जब दोनों ही सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स काफ़ी प्रेशर में और काफ़ी हीट में दबते हैं, तब वो क्या बनाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेनाइट, इग्नियस रॉक्स एंड इनटू gneisses and transformation of limestone, sedimentary rocks into marble are some common example of metamorphic rocks। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे आपका जो सेडिमेंट्री रॉक है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से मार्बल बनता है। तो लाइमस्टोन क्या है? सेडिमेंट्री रॉक है, और मार्बल क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है। अदर एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स आर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ shale into slate, formation of coal into granite, formation of sandstone into quartzite। ये कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन के नाम आपके बुक में दिए गए हैं। देन आपका आता है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस इन विच रॉक्स चेंज फ्रॉम वन काइंड टू अनदर। इग्नियस रॉक्स disintegrate under impact of force of nature। The broken material get deposited on the floor of ocean, sea, river and lake to form sedimentary rocks।
Sedimentary rocks under extreme pressure and temperature change into metamorphic rocks again, and under extreme heat and pressure metamorphic rocks and sedimentary rocks melt to form magma from which igneous rocks are found. Thus the rock cycle continue. अब यहाँ पे एक चक्र दिखाया जा रहा है कि कैसे रॉक साइकिल कंटिन्यू रहती है। सबसे पहले हम लोगों ने इग्नियस रॉक को पढ़ा जो कि मैग्मा से बनता है। फिर जब इग्नियस रॉक छोटे छोटे पार्ट्स में डिपॉजिट होते हैं और टूटते हैं और डिपॉजिट होते हैं ओशन फ्लोर या किसी भी वाटर बॉडीज के फ्लोर पे, तब वो बनाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। और जब सेडिमेंट्री रॉक्स एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर को झेलते हैं तब वो बनाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स गर्मी की वजह से मैग्मा में कन्वर्ट होते हैं तो मैग्मा से फिर क्या बनता है, इग्नियस रॉक्स। तो ये एक साइकिल बनी हुई है कि कैसे इग्नियस रॉक से हम लोग सेडिमेंट्री रॉक पे आते हैं, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से फिर इग्नियस। तो ये कंटिन्यू रहता है। इसी वजह से इनका जो परसेंटेज है वो इक्वल रहता है क्योंकि सब चेंज हुआ करते हैं लगातार। तो ये जब तक एक साइकिल कंटिन्यू है तब तक कोई भी एक टाइप का रॉक ऐसा नहीं होगा कि मतलब अगर आपने मेटामॉर्फिक रॉक को यूज कर लिया तो अब मेटामॉर्फिक रॉक्स मिल ही नहीं रहे, क्योंकि साइकिल कंटिन्यू लगातार चल रही है। हाँ, इस प्रोसेस में टाइम बहुत लगता है आपका। अब हम लोग बात करते हैं यूजेस ऑफ रॉक के बारे में। हैव यू एवर वॉन्डर्ड दैट द वर्ल्ड वुड बी लाइक विदाउट रॉक्स? Rocks are widely used in almost all the construction activities, and not just that, there are many other uses of rocks too. We use rocks for road, metals, jewelry, tombstone, building materials, cosmetics for cutting and drilling purpose, and many other things. Most of the famous the Great Wall of China is made up of rocks. Sculptures of the world are made from rock or stone such as granite and marble. Do you know that the Great Wall of China and the Taj Mahal are made out of rocks? Some person even collect rocks as a hobby. यहाँ पे यूजेस ऑफ रॉक्स बताया गया है कि रॉक्स बहुत ही ज्यादा वैरायटी में पाए जाते हैं और मोस्टली ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में यूज किए जाते हैं। इनके और भी यूजेस हैं जैसे कि रोड्स में, मेटल्स में, क्योंकि हम लोगों को मेटल्स भी रॉक से ही मिलते हैं। जब हम लोग ड्रिल करते हैं मेटल्स, उसके बाद जब हम लोगों को कंपोजिशन मिलता है उसको फिर हम लोग मेटलर्जी के प्रोसेस के थ्रू साफ करते हैं, तब हम लोग उससे मेटल निकालते हैं। ज्वेलरीज के जितने भी आइटम्स होते हैं वो भी हम लोगों को रॉक से ही मिलते हैं। टूमस्टोन वो स्टोन होता है जो कि किसी की कब्र पे रखने जाने वाला पत्थर होता है। देन बिल्डिंग मटेरियल्स, कॉस्मेटिक्स फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग पर्पस, इन सभी और चीज़ों के लिए भी रॉक्स को यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दूसरा ताजमहल, जो कि दोनों ही रॉक से ही बनाई गई हैं। और कुछ लोग रॉक्स को कलेक्ट भी करते हैं एज अ हॉबी। स्टूडेंट, आप लोगों का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आज के चैप्टर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।